आप इतना बड़ा वजन उठा पा रहे हो। सही, तभी हम विराट के बारे में अक्सर सुनते हैं कि तो अपनी प्रैक्टिसिंग बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इस लेवल पे आ गया, वो इतने बड़े मैं कहूँगी ब्रांड बन चुके हैं, सुपरस्टार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिक अली और मेरे साथ हैं हाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है विराट कोहली से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। का टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इज विराट कोहली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर टाइम, सदगुरु। सो स्टार्ट। Being a very deep cricket enthusiast and now somewhat involved with the sport, I see with admiration the rise of Virat Kohli. I see his energy on the field, I see his energy off the field. I see the way he's transforming and rewriting the rules of the game. The T20 format, 140 to 160 was par score. He's redefined it. Now 190 is subpar. 250. 250, 240. There is something within him that propels him more than others. There are many people who are talented. There are many people who have this ability, but there are few who realize this ability. What is it that takes one to realize that he can do a little more, he can inspire more, he can create more, he can create new standards? Is there something from within or is it something from outside? What is it? I've also been watching Virat Kohli with interest because I've seen every great batsman in the last 45 years. Very few have hit the ball the way he's hitting it. Probably the only other person that I can think of is Vivian Richards, who used to hit the ball like this. I think he was the only one who was striking the ball the way this boy is striking today, which is very rare. Most people who have watched only cricket on the television don't understand this probably. It's one of the most dangerous games on the planet. A hard ball is coming at you over 130, 140 kilometers per hour. And this is the only sport where the ball is pitched and it swings this way, that way, which gives you a fraction of a second to make your decision how to handle that ball. It's a very dangerous game. You must… you know, the bowling machines, they may be there in Calcutta, yes? The bowling machines are there. Young man, I'm telling you, don't try 140 kilometers. At 80 or 90 kilometers, just set the bowling machine at 90 kilometers and stand there and see how the ball comes at you. It's crazy, okay? So every ball is different, the way it's coming at you, so it needs to be handled. Everybody who's there, we must understand, is very good. They may look clumsy, they may get out for zero, but they're very good with what they're doing. But somebody stands out like this. This reminds me of… there was a motorcycle rider whose name was Kenny Roberts, who won the world championships 5 times in a row. People couldn't believe it because you have to win 16 races across the country to get to the championship. All the machines are prepared by the top companies and the talent is at the highest level. But winning 5 in a row was considered unprecedented and impossible. So they asked him, how do you do this? So he said, I go out of control with control. I understand that very well. I live every step of my life like that, always out of control but with control. This is what everybody is seeking. They want little madness in their life.
but they don't want to go insane. But their longing for safety and security makes them insulate themselves from that little madness. Then they wonder, what's happened to my life? It's become boring and no good. They try to step out, then they get hit by something. They again build walls around them. This process is going on. So when you take an example like this, one thing is the zeal. Another thing is loving what you're doing, really loving what you're doing. That's what you want to do. Now, I think recently Virat Kohli came on the television and said, my only problem is I get angry. I want to be like a monk, something he said, whatever, his own version of being wanting to calm. With the kind of talent he has, he is going to be a phenomenon. He's going to be a new cricketing story on the planet. Not just one more player. He has the necessary ingredients. I said this when he was 17. I saw him playing in Singapore for the under-18 team or something, he was captaining that team at that time. I saw this boy playing and then only I said, this guy will go far. And then he vanished out of my radar for almost 5–6 years, and then he surfaced suddenly one day in the test in the Indian team, and now he's going the way he's going. If he learns to be a cool fire, not a fire that burns him up, then he will do things which probably has not been done for a long time. जी जनाब। अच्छा, कुछ गिने चुने माने जाने क्रिकेटर्स हैं दुनिया में। इंडियन टीम्स के कुछ ऐसे नाम हैं जैसे कि MS धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं। इनकी मतलब मैं ये कहूँगी इनकी एक अच्छी फैन बेस है, इनकी बहुत फॉलोइंग है, लड़के इनको बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब से विराट का नाम आया है, जब से विराट आए हैं, जब से इनकी चर्चा होने लग गई है, जब से इनकी बातचीत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है बाकी दूसरे नाम थोड़े से मांद पड़ गए। बात उनकी भी होती है, परफॉर्मेंस की उनकी भी बात होती है, फला मैच में ऐसे खेला था, फला मैच में ऐसे खेला था, वो क्या सिक्सर था, वो क्या फोर था। लेकिन विराट की बातें जिस तरीके से होती हैं, जितना जोश के साथ, जितनी एक पुरतपाक तरीके से पाकिस्तान में देखती हूँ मैं, वो शायद ही किसी प्लेयर की होती हो। और मुझे बार बार ऐसा लगता था विराट को देखकर कि कुछ मैचेस मैंने बहुत स्टार्टिंग के भी इनके देखे हैं, तो बीच में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रुझान ख़त्म हो गया था इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, लेकिन उससे पहले जब बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, बहुत यंग से थे आए थे, तब भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इनकी। ऐसा नहीं है कि बहुत एवरेज खेलते था या लो टू एवरेज खेलते थे, ऐसा नहीं था, परफॉर्मेंस तब भी अच्छी थी। लेकिन मैंने देखा है इनको कि डे बाय डे ये एक तरीके से दिन ब दिन जो है ना तराशते चले गए, बेहतर से बेहतर होते चले गए, अच्छे से अच्छा खेलते चले गए। तो मुझे वाकई मुझे भी दिल में ये बात आती थी कि कैसे हुआ ये सब, कैसे इतने आगे गए, कैसे इस तरीके से मतलब देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत बड़े स्टार बन गए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि इन्होंने बताया कि वाकई क्रिकेट एक बड़ा रिस्की गेम है, बहुत रिस्की। जब आपके पास बॉल आ रही होती है, अच्छा हर मर्तबा नए अंदाज से बॉल आती है। मिसाल के तौर पे कोई बॉल डायरेक्ट आपके बैट पे आती है, कोई बॉल एक टिप्पा खाती है, कोई बॉल एक टिप्पा खा के कितनी ऊंची आ रही है, एक कितनी नीची आ रही है, ठीक है ना, एक बाउंस लेके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं आपको बताऊं, अच्छा फिर उसकी स्पीड 140, 135, 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये है कि जैसे बॉल चलती है 140, 145 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, गाड़ियों की जो स्पीड होती है, जैसे सीसी होता है 800 सीसी, 700 सीसी, वो हॉर्स पावर होता है, एक अलग चीज़ होती है। तो खैर बहरहाल, तो एक मैं कहता हूँ सेकंडों से भी कम सेकंड का टाइम होता है, आपको फैसला करना होता है और कहाँ मारनी है, कैसे मारनी है। तो बहुत ही हाजिर दिमागी का गेम है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है विराट के हवाले से कि ये ना फिजिकली तो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, और हर सिक्सर पे या जब भी ये बॉल हिट करते हैं, इनको पहले से पता होता है कि मैं इस तरीके से हिट कर रहा हूँ और ये यहाँ तक जाने वाली है। इससे सिक्सर जब होता है तो अक्सर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि सिक्सर होता है उससे पहले जब ये हिट कर रहे होते हैं, आप इनके फेस एक्सप्रेशंस देखा करें, जैसे एक ताकत और एक जान और एक एनर्जी अलग ही लेवल की दिख रही होती है कि यार ये सिक्सर पक्का है जब वो हिट कर रहे होते हैं, और वो वाकई सिक्सर होता है।
तो एक तो अपने गेम को लेकर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक क्लैरिटी बहुत है, आगे का इनको पता होता है कि मुझे किस तरीके से खेलना है, मुझे कैसे हिट करनी है। और दूसरी बात, फ़ौरन फैसला आज कर लेते हैं, फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट मैचेस में ही ऐसा हुआ इनके, आई थिंक इनके साथ हार्दिक पांड्या थे कि पता नहीं कोई और प्लेयर थे, बॉल कराई पाकिस्तानी प्लेयर ने, तो जब उनने बॉल करवाई इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इनको आइडिया था कि बॉल ज़्यादा दूर नहीं गई है, आउट हो जाएंगे, आउट होने का बहुत खदशा था इनको। ये अपनी जगह पे खड़े हैं, जबकि दूसरा वाला जो बैट्समैन था वो भाग लिया, वो रन बना रहा है। हाँ वो रन बना है। अच्छा, जब वो इनकी इतनी अच्छी मुझे उस वक्त एक फैसला करने की कुव्वत और एक आइडिया, और एक पहले इनको आगे से पता था कि मैं भाग सकता हूँ, मुझे भागना चाहिए, मुझे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी भी सदगुरु ने भी ये बात बोली कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता डिसीजन लेने के, आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं जिसमें आपको रुकना है, भागना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो ये गेम वैसे ही बहुत डेंजरस है। अच्छा, दूसरे प्लेयर भाग गए, जब वो आधी फील्ड में आए ना तो इन्होंने उनको मना करा कि तुमने गलत करा है, तुम जगह नहीं छोड़ो, तुम वापस जाओ। जब वो मुड़े भागने के लिए तो पाकिस्तानी बॉलर आउट कर चुके थे, वो बीच में ही थे। अच्छा, तो रन आउट हो चुके थे। तो मैं वही उसी वक्त मैंने ये सोचा कि ये बड़ा दिमाग से खेलते हैं, इनको आइडिया है कि कब छोड़ना है, कब भागना है, कब नहीं भागना। अच्छा, एक चीज़ है ज़िंदगी में कामयाबी का एक रूल बता देता हूँ, उसूल बता देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि आसान है, लेकिन एक वक्त पे आके वो मुश्किल होने लग जाता है। जिसने वो कर लिया कामयाब है। मिसाल के तौर पे आपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल करना है, कोई भी चीज़ सीखनी है। अब मिसाल के तौर पे आप उस चीज़ को सीखने के लिए घंटों लगाते हैं किसी दिन, फिर हफ्ते 10 दिनों तक कुछ नहीं करते ही नहीं हम। हाँ। फिर हम कभी अचानक जज्बा आता है, जोश आता है, कोई वीडियो देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, संदीप माहेश्वरी की, विवेक बिंद्रा जी की, फिर हम कुछ शुरू हो जाते हैं। बेहतरीन एक फार्मूला है जिससे आपको ताकत भी नहीं लगानी, ज़ोर भी नहीं देना, और बहुत ज़्यादा एक चीज़ जैसे खेल हो सकता है, कोई चीज़ नॉलेज हो मिजाजी के साथ, मुझे लग रहा है आप कहेंगे आप नहीं तरीका, उसका तरीका क्या है, थोड़ा सा उसमें और फ़र्क है। मुस्तकिल मिजाजी भी आ गई। आपने पहले दिन सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, सीखना, पढ़ना, कोई भी चीज़, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट उसको दें। कितनी देर? 5 मिनट। कोई मुश्किल है? कुछ चीज़ पढ़ने की भी हो सकती है, खेल भी हो सकता है, प्रैक्टिस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है, वो आपके ऊपर है। फिर दूसरे दिन कितना दें? 10 मिनट, 6 मिनट, चलें 1 मिनट बढ़ा दें। उसके बाद कुछ अरसे बाद एक वक्त आएगा, आप कितना दे रहे होंगे टाइम उसको? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, लेकिन वो आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। आदत हो गई ना, आदत हो गई, आप यूज्ड टू हो गए। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक गाय का बछड़ा होता है, छोटा सा। गाय कितनी बड़ी हो सकती है? काऊ 2-2.5 मन की होती है, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा होता है जब उसका, एक आम आदमी उसको उठा सकता है? जब वो पैदा हुआ है 40 मन का तो होगा। जब वो पैदा हुआ तो एक आम आदमी उसको उठा सकता है? छोटा सा होता है गाय का बछड़ा, शायद मैंने नहीं देखा। उठा सकता है? मैंने देखा उठा ही नहीं। सकता है। अच्छा, उठा सकता है, ठीक है, उठा के कहीं लेके जा रहा है ऐसे, जा सकता है। फिर दूसरे दिन भी लेके जा रहा है, फिर तीसरे दिन भी लेके जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हेवी हो जाएगा तब तो नहीं उठा सकता। उठा सकता है। ये कमाल की बात हुई, कैसे? क्योंकि उसका वज़न डेली मामूली बढ़ा है। ठीक है, बगैर महसूस हुए बढ़ा है। क्या नहीं, अन्न के आगे तो अन्न के आगे अंडा था। अच्छा सुने, बगैर महसूस हुए उसका वज़न बढ़ा है। अब वो डेली उसे उठाता था, उसे कहीं लेके चला जाता था, अब डेली उसे उठाता था, अब डेली वो बढ़ रहा है, लेकिन इतना मामूली सा बढ़ रहा है कि जब वो उठाता था उसे पता भी नहीं होता था। एक वक्त ऐसा आया कि एक शख्स ने उसे पूरी गाय उठाते हुए देखा और ले जाते हुए देखा, तो बोला ये कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि दूसरा शख्स नहीं उठा सकता। तो उसने बोला क्या हो गया? बोला तुमने इसको कैसे उठा के लेके जा रहे हो? बोला नहीं, साल हो गया, 2 साल हो गए लेके जा रहा हूँ। अब वो 2 साल में मामूली बढ़ने से उसको फील ही नहीं हुआ कि वो भी स्ट्रांग हो गया, वो इस आदत हो गई उसको, यानी कि उसके वजन के लेवल तक उसकी ताकत भी पहुंच गई, उसके जिस्म की ताकत की वो बेयर कर पाता और वो उसको लिफ्ट कर पाता। अच्छा, लेकिन अगर एकदम से उससे वो कभी भी नहीं, क्योंकि जिसको हैरत अंगेज तौर पे हैरत हो रही थी, तो यकीनन किसी आम इंसान से नहीं हो सकता था वो। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि डेली बेसिस पे अगर इंसान किसी चीज़ को उठाता है और वो चीज़ माइनर सी बढ़े, तो आपको क्या लगता है कि साल तक फर्क? मुझे थोड़ा मतलब 2-2.5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती। नहीं, वाकई मुझे ऐसा नहीं लग रहा वैसे कि एक बड़े साइज का नहीं आप बात को समझे, डेली बेसिस में, डेली पे भी ठीक तो है। आप उस वजन उस देखिए, जब आप उठा रहे हैं ना, उसके वजन को छोड़ दें, आप उसको एक
प्रैक्टिस हो गई उसको कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना कहाँ से पकड़ना है, कहाँ रखना है, कहाँ ले जाना है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो आपकी बॉडी और उसके वज़न को फील ही नहीं हुआ कि वो आज तसव्वुर करें कि एकदम से होता ना तो फ़र्क आता है, फिर आपके लिए नामुमकिन था। लेकिन डेली बेसिस पे जब आपने एक चीज़ को उठाया, वो चीज़ मामूली सी बड़ी, पता ही नहीं चला कि आप इतना बड़ा वजन उठा पा रहे हो। सही, तभी हम विराट के बारे में अक्सर सुनते हैं कि प्रैक्टिस, तो अपनी प्रैक्टिसिंग बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इस लेवल पे आ गया, वो इतने बड़े, मैं कहूँगी ब्रांड बन चुके हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, क्रिकेट की दुनिया के बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी प्रैक्टिस को इतना टाइम देते हैं, अपनी फिटनेस को इतना टाइम देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना सोचते हैं, इतनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चीज़ों से सीखते हैं, अपनी मिस्टेक्स से ही नेक्स्ट टाइम कि मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, इससे मुझे ये सबक मिला। ये अच्छा, हमारे प्लेयर्स अक्सर हारने के बाद अक्सर मैचेस में यही कहते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तो मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, क्या कितना सीखेंगे आप, बस अब थोड़ा सा ये ना कि मैंने गलती करी, नेक्स्ट टाइम मैं उसका रिजल्ट तो दिखाऊँ, मैं कुछ करके तो दिखाऊँ, कुछ अच्छा तो करूँ। वो रस्मी जुमले होते हैं जो बोलना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि मुसलसल प्रैक्टिस। विराट कोहली ने जिस दिन ये सोच लिया कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, तो उस दिन उनकी उल्टी गिनती। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, सदगुरु जी और क्रिकेट। मैं तो थोड़ा सा टाइटल से हैरान था, फिर बाद में पता चला। अच्छा, बड़ा इंटरेस्ट है, कह रहे हैं 40-50 साल से। और इन्होंने बाकायदा उनको रियल देखा भी है कि उनका मैच भी देखा और किस तरीके से खेलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।